نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا مقبولا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت 99 to 110 کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کریں گے۔ آیت 99 دیکھیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق انزلنا ہم نے اتاری الیکا آپ کی طرف یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیات بینات واضح نشانیاں وما اور نہیں یکفرو وہ کفر کرتا یا انکار کرتا بیہا ساتھ اس کے الا مگر الفاسقون جو نافرمان ہے یا فاسق ہے آوا کیا کلما جب کبھی عہدو انہوں نے عہد کیا عہدن کوئی عہد نبذہ توڑ دیا اس کو فریقم منہم ایک فریق ان میں سے بلکہ اکثر ان کے لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لاتے ولما اور جب جاءہم آیا ان کے پاس رسول ایک رسول من سے اندی طرف یا پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مصدقن تصدیق کرنے والا لما اس کی جو معہم ان کے پاس نبذا پھینک دیا فریقن ایک فریق من سے الذین وہ لوگ جو اوت الکتاب دیے گئے کتاب اللہ کی کتاب کو وراء پیچھے ظہورہم پیٹھوں کی ان کی کانہم بے شک تھے وہ لا نہیں یعلمون وہ جانتے واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی ما جو تتلو تلاوت کرتے یا پڑھتے شیاطین علی اوپر ملکی بادشاہت سلیمان علیہ السلام وما حالانکہ یہاں واو کا مطلب ہم حالانکہ کریں گے اور ہوتا نا واو کا مطلب یہاں پر حالانکہ کریں گے وما حالانکہ نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے ولکنہ اور لیکن الشیاطین شیطان کفر کیا یعلمون وہ سکھاتے تھے الناس لوگوں کو سحر جادو وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا علی اوپر ملکینی دو فرشتوں کے ببابیلا شہر کا نام ہے یہ بابل شہر میں ہاروت و ماروتا اور ماروت پر وما اور نہیں یعلمانی وہ دونوں سکھاتے من احدن کسی ایک کو بھی حتی یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہتے انما بے شک جو نحنو ہم فتنتن آزمائش ہے فلا تو نہ یا پس نہ تا تم کفر فلا تکفر پس نہ تم کفر کرو فیتعلمون تو وہ سیکھتے ہیں منہما ان دونوں سے ما جو یفرقون جدائی ڈالتا یعنی وہ جدائی ڈالتے بھی ساتھ اس کے بینا درمیان المرئی خاوند شوہر و زوجہی اور اس کی بیوی وما اور وہ ہم نہیں تھے وما ہم اور نہیں تھے بزارین نقصان پہنچانے والے بھی ساتھ اس کے
من अहदिन किसी एक को, इल्ला मगर, बीइज़्नी इजाजत से, अल्लाह सुब्हानहू तआला की। वयतअल्लमूना और वो सीखते थे, माँ जो, यजुर्रुहुम उन्हें नुकसान पहुंचाए, वला और नहीं, यनफऊहुम वो फायदा देता है उनको, वलक़द और अलबत्ता तहकीक, आलिमो वो जानते थे, लमनी अलबत्ता जो, लमनिश्तरहु अलबत्ता जो खरीदेगा उसको, माँ नहीं, लहू उसके लिए, फिल आखिरती आखिरत में, मिन खलाक कोई हिस्सा, आखिरत में से कोई हिस्सा नहीं है। वा और, लबीसा अलबत्ता बुरा है, माँ जो, शरो उन्होंने बेच दिया, बिही साथ इसके, अनफुसहुम नफ्सों को अपने, लो काश, कानू थे वो, यालमून वो इल्म रखते, वलो और अगर, अन्नहुम बेशक वो, आमनु ईमान लाते, वत्तकू और तकवा अख्तियार करते, लमसूबतन तो ठिकाना पाते, मिन इंदिल्लाही मिन से, इंदी पास, अल्लाह सुब्हानहू तआला के, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास से, खैरुन बेहतर, लो कानू काश, कानू वो, यालमुन जानते होते। या अय्युहल्लज़ीना ऐ लोगो जो, आमनु ईमान लाए, ला ना, तकूलू तुम कहो, राइना रियायत कीजिए, वकूलू बल्कि कहो, उन्जुरना तवज्जा फरमाए हमारी तरफ, वस्मऊ और गौर से सुनो, व और, लिल काफिरीना लिए काफिरों के, अजाबुन अजाब है, अलीम दर्दनाक। माँ नहीं, माँ की मीनिंग जो भी होते या नहीं भी होते सेंटेंस के हिसाब से, ठीक है। यवद्दू नहीं वो चाहते, अल्लजीना वो लोग जिन्होंने, कफरू कुफर किया, मिन अहलिल किताब मिन से, अहलिल किताब अहले किताब में से, वला और ना, मुशरिकीना मुशरिकीन, अन के, युनज़्ज़ला वो नाजिल की जाए, अलैकुम तुम पर, मिन खैरिन कोई भलाई, मिन से, रब्बिकुम तुम्हारे रब से, यानी तुम्हारी रब की तरफ से, वल्लाहु और अल्लाह सुब्हानहू तआला, यख्तस्सु खास कर लेता है, बिरहमतिही साथ अपनी रहमत के, मन यशा जिसको वो चाहता है, वल्लाहु और अल्लाह सुब्हानहू तआला, जुल फजली फजल वाला है, अल अजीम बहुत बड़ा। माँ नहीं, ननसख हम मंसूख करते हैं, मिन आयातिन कोई आयत, और या, नुनसीहा भुला देते हैं उसे, नाती हम ले आते हैं, बिखैरिन साथ बेहतर, मिनहा उससे, औ या, मिसलिहा मानिन उसकी, अलम क्या नहीं, तालम तुम इल्म रखते, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला, अला ऊपर, कुल्ली शैइन हर चीज के, कुल्ली हर शैइन चीज, कदीरुन कुदरत रखता है या कुदरत रखने वाला। अलम क्या नहीं, तालम तुम जानते, बेशक, अन्ना बेशक, अल्लाह सुब्हानहू तआला, लहू लिए उसके, मुल्कु बादशाहत, असमावाती आसमानों की, वल अर्दी और जमीन की, वमा और नहीं, लकुम तुम्हारे लिए, मिन दूनी सिवाय, मिन से, दूनी सिवाय, अल्लाह सुब्हानहू तआला के, मिन से, वली वला नसीर, वली कोई दोस्त, वला और ना, नसीर कोई मददगार। अम क्या, तुरीदूना तुम चाहते हो, अन के, तसअलु तुम सवाल करो, रसूलकुम अपने रसूल से, कमा जैसा के, सुइला सवाल किए गए, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम, मिन कबली इससे पहले, वमन और जो, यतबद्दली वो तब्दील करेगा, कुफरा कुफर को, बिल ईमानी बदले ईमान के, फकत तो तहकीक, जल्ला वो गुमराह हो गए या भटक गए, सवा सीधे, असबील रास्ते से, वद्दा दिल से चाहते, कसीरुन बहुत सारे,
من अहली मिन से, अहलिल किताब अहले किताब से, लो काश, यरुद्दूनकुम वो तुम्हें लौटा दें, मिन से बादी बाद, ईमानिकुम ईमान के तुम्हारे, कुफारा कुफर में, हसदन हसद की वजह से, मिन से इंदी पास, अम्फुसिहिम अपने नफ्सों के, मिन बादी बाद उसके, माँ जो, तबय्यना वाज़िया हो गया, लहुम लिए उनके, अलहक हक, फ़अफ़ू बस तुम माफ करो, वस्फ़हू और दरगुजर करो, हत्ता यहाँ तक के, यातिया ले आए, अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला, बिअम्रिही अपना हुक्म या अपना फैसला, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला, अला ऊपर, कुल्ली हर, शैइन चीज के, खदीर कुदरत रखता है या कुदरत रखने वाला, वाक़िमू और कायम करो, अस्सलाह नमाज को, वातु और अदा करो, अज़्ज़का ज़कात को, वा और मा जो, तुक़द्दिमू तुम आगे भेजोगे, लि अनफुसिकुम लिए तुम्हारी नफ्सों के, मिन से खैर भलाई या कोई नेकी, तजीदुहु तुम पाओगे उसको, इंदल्लाही अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला, बीमा साथ उसके जो, तामलूना तुम अमल करते हो, बसीर देखने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफीक से आज हम सूरह बकरा की 110 आयतें मुकम्मल कर चुके। चलें अब हम तफसीर की तरफ चलते हैं। आयत 99 की तफसीर देखें। और यकीनन हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रोशन दलीलें भेजी है जिसका इनकार सिवाय कुफ्फार के कोई नहीं कर सकते। आयातिम बय्यिनात से क्या मुराद है? आयातिम बय्यिनात यानी रोशन दलीलें, और इससे रोशन दलीलों से क्या मुराद है? कुरान मजीद। इसे खोल खोल कर आसान मिसालें देकर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए समझाया है। फासिक किसे कहते हैं? जो शरई हुदूद से निकल जाता है, नाफरमान लोगों को फासिक कहा जाता है। जो खुद को कुरान पढ़कर भी बदलना नहीं चाहते वैसे लोगों को फासिक कहा जाता है, क्योंकि तौरात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां सारी की सारी मौजूद थी। जानते बूझते उन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कुरान को नहीं माना, उस पर ही मानने लाए, तो ये लोग क्या हो गए? जानते बूझते फासिक हो गए। आयत 100 की तफसीर देखें। ये लोग जब कभी अहद करते तो उनकी एक जमात उसे तोड़ देती। अल्लाह सुब्हानहू तआला सारे यहूद को नहीं कहा, क्योंकि उसमें अच्छे भी लोग थे, बुरे भी है। जैसा हर कम्युनिटी में अभी भी ब्लैक शिप होते ना, वैसे यहूद में भी ऐसे बुरे लोग थे जो अहद को तोड़ देते थे, और बल्कि अक्सर लोग इनके ईमान से खाली होते हैं। यानी बनी इसराइल क्या करते? नबियों की कुछ बातें मानते थे, कुछ बातें नहीं मानते थे। उनकी मर्जी के खिलाफ अगर कोई आयत नाजिल होती तो उसका साथ कुफर करते थे, यानी इनकार करते थे। अब यहाँ पर तो उनके लिए बहुत अना का मसला आ गया था। अब नबूवत उनकी नस्ल से मुंतकिल होकर बनी इस्माइल में आ गई थी, तो बनी इस्माइल में नबूवत आने के बाद अब लोगों को ऐसा लगा कि ये आखिरी नबी थे, और हमारी नस्ल में जो नबूवत का सिलसिला चलते आ रहा था, रिसालत का, नबूवत का, वो अब खत्म हो चुका, किसी और कौम में मुंतकिल हो गया। तभी लोगों के बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इनकी हसद, जलन, तकब्बुर बढ़ते चला गया था, और तकब्बुर की वजह से कुरान को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार भी कर दिया। लेकिन ये इनकार करके क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला का नुकसान कर सके ये लोग? बल्कि वो खुद अपने नफ्सों का नुकसान करे। इनके ईमान लाने से नहीं लाने से अल्लाह सुब्हानहू तआला की शान में कोई फर्क आने वाला नहीं है। हम भी अगर अल्लाह की इबादत करेंगे भी तो हमारे अपने नफ्स के लिए है, अगर नहीं भी करेंगे तो अल्लाह को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं हमारे अपने नफ्स के लिए कर रहे हैं। आयत है ना 101 की तफसीर देखें। जब कभी उनके पास अल्लाह का कोई रसूल उनकी किताब की तस्दीक करने वाला आया, यानी तौरात, ज़बूर जो पिछली किताबें हैं उसकी तस्दीक, हर आने वाली किताब पिछली किताबों की तस्दीक करती थी, क्योंकि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाज़िल कुर्दा थी। लेकिन उसमें लोगों ने जो बदल दिया था, आयतें अहकामत बदल दिए थे, वो और बात है। लेकिन आसमानी किताब जो भी थी उसके बाद आने वाला हर नबी पिछली किताब की तस्दीक किया करते थे। उन अहले किताब के एक गुरु यानी एक फरीक ने अल्लाह की किताब को इस तरह पीठ पीछे डाल दिया, गोया जानते ही ना थे। पीठ पीछे डालने का मतलब अपनी पीठ के पीछे रखना नहीं है, ये महावरतन कहा गया
पीठ पीछे डालना मतलब उसको कुरान को अपने पास रखते हुए सजा के अलमारियों में शोकेशों में हम रखते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं, उस पर अमल करते नहीं, तो ये पीठ पीछे डालना है ये मतलब। जैसे कि आज हम मुसलमानों के घर में कम से कम 2-3 कुरान तो होती है, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, क्या हुक्म है। तो इसका मतलब है कुरान को पीठ पीछे डाल देना। अगर हम समझ के जब तक उसका हक नहीं अदा करेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे, ये ऐसे ही है कि जैसे हम पीठे, ये जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम डाली थी, पीठ पीछे डाल देना, वही मतलब हमारे लिए भी है। आप तौरात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का वादा भी मौजूद है। उसको देखकर उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाना चाहिए था, क्योंकि उनकी किताबों में जो आसार, जो निशानियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, वो उनके अपने बेटों से भी ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते थे। लेकिन ज्यादा जानने के बावजूद भी वो लोगों ने कुफर किया। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ जो अहद था उनका, वो तोड़ दिए। ये तो यहूद की कुछ लोगों की आदत बन गई थी कि जो भी अल्लाह से या किसी से रसूल से अहद करते उसको तोड़ डालते थे। इस आयत में हमारे लिए भी ताकीदी हुक्म दिया गया है। कुरान पर ईमान के साथ अमल भी करना जरूरी है। गौर से सुनने और मजबूती से पकड़ो, ये हुक्म तमाम इंसानियत के लिए है। गौर से सुनेंगे तो हम दोबारा उसमें सवाल करने की जरूरत ही नहीं रहती ना। और मजबूती से पकड़ो का मतलब है पिछली आयतों में समझा चुकी, हाथ से पकड़ने को नहीं कहा गया, बल्कि जो भी अहकामात है उस पर हम बिना किसी चू चरा करे के समियाना बताना जैसा मोमिन को करना चाहिए, वैसा हम उस पर अमल करना चाहिए। कुरान हमारी अलमारियों की शोकेशों की जीनत तो बन गया, लेकिन हम उसको सजा के रखते हैं, उसकी इज्जत ताजीम इतनी करते हैं कि बस उसको ऊंची जगह पे रख देते हैं। मगर उसके अंदर क्या है उसको समझते नहीं। अगर कुरान को पढ़ते तो कब पढ़ते? किसी की वफात होने पर, या फिर किसी का नया घर बनाया गया तो वहां पर कुरान ख्वानी कराई जाती। वो खुद भी नहीं पढ़ते, बल्कि किसी को पैसे देकर बुलाया जाता। अब ये फैशन बन गया ना, जब नया घर बनाए कुछ भी करो कुरान ख्वानी करा रहे। लेकिन कुरान की बरकत तभी हासिल कर सकते हो जब खुद पढ़ो, घर वाले पढ़ो। एक रुकू क्यों ना हो तो घर वाले पढ़ने की बात अलग होती है। ये हाफिजों को बुला के जो कुरान ख्वानी कराते, वो तो उनके लिए है नेकियां और अजर। आप पैसे दे के वो पढ़ाने से आपको उसकी कोई नेकियां मिलने वाली है नहीं। आप जब पढ़ेंगे तो एक एक हुरूफ का अजर आपको मिलने वाला है। यानी यह तरीका यहाँ पर क्या बताया गया, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करके अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी कर ले। अगर हमें दुनिया की सबसे बड़ी अगर यूनिवर्सिटी में अगर कहीं दाखिला मिल गया, या हमारे बच्चों को कहीं अच्छा रिश्ता हो गया, या बच्चे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे, तो हम बड़े शान फख्र से कहते हैं कि हमारा बच्चा फलां कॉलेज में पढ़ता, हमारे बच्चे की शादी फलां लड़की से हो रही। यानी ये हमारा मैयार हो गया है। लेकिन कुरान की क्लासेस में दाखिला मिल जाना हमारे लिए छुपाने वाली बात मायूब समझ रहे हैं आजकल। कुरान में दाखिला मिल जाना ये सबसे ज्यादा इसकी बात पर, यानी इसका हक है कि हम उस पर फख्र करें। मगर अफसोस इसकी कदर ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि कुरान की क्लासेस अक्सर फ्री में मिल जा रहे हैं ना। इसीलिए जब चाहे ज्वाइन कर लिए, जब चाहे छोड़कर चले जा सकते। ये रवैया हो गया हमारा कुरान के साथ। जैसा हक कुरान का है हम अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप का मुहासिबा करें। आयत 102 की तफसीर देखें। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहूद की शरारतें बयान की। यानी यहूदियों ने अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब और इसके अहद को तोड़ा, उसकी परवाह ही नहीं की, ऊपर से शैतान के पीछे लगकर जादू सीखने लग गए और दावा किया कि ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी जादू करते थे, उसी के जरिए, उन्हें अल्लाह के पैगंबर नहीं थे, नौजुबिल्ला, जादू के जोर से ही वो हुकूमत करते थे जिन्नात पर, शयातीन पर, चरिंद परिंद पर, हवा पर, पानी पर। मालूम है ना सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत किस किस चीज पे थी, वो सब शैतान कहते थे कि जादू के बलबूते पे करते थे। तो मैं इसका शान नुज़ुल बता दूं, इसका इस आयत का। पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में जादूगरी का सिलसिला आम हो गया था। ये कब की बात है? मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में भी जादू ज्यादा था। उसके बाद हारून अलैहिस्सलाम गुजर गए, योशा बिन नून, दाऊद अलैहिस्सलाम, कई नबी गुजरने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम आए थे। तो उनके जमाने में भी जादू का सिलसिला आम हो गया था। और जो कुछ भी शैतान आसमानों से सुनकर आते थे, नुजूमी और काहिनों से कहते थे, फिर वो नुजूमी काहिन क्या करते थे, वो एक सच बात में 100 झूठ बातें मिला के जो भी उनके पास जाते अवाम को बताते थे। तो वो अवाम को बताने से अवाम क्या हो जाती, वो 10 बातें 100 बातें जो भी उन लोगों ने झूठ मिलाई उसको तो नजरअंदाज कर देते, लेकिन जो एक बात सच्ची रहती उनके दिल को लग जाती। अरे ये तो बड़े पहुंचे हुए हैं, इन्होंने हमारे बारे में बता दिया, सही है बोल के गुमराह होना शुरू हो जाता। और वो जादूगरों के, आमिलों के, पीर मुर्शदों के जाल में हम फंसते जाते।
अल्लाह सुब्हान ताला ने बाबिल नाम का एक शहर था, वहां पर 2 फरिश्ते जिसका नाम हारूत और मारूत था, जादूगरी का इल्म देकर भेजा गया था। इसमें भेजने में क्या मकसद था वो भी हम देखेंगे। वो इसके में मकसद एक तो ये समझ में आ रहा है कि अंबिया और रसूलों के हाथों पे जो मोजिजे जाहिर होते थे अल्लाह के हुक्म से, उसको लोग जादू कहते थे। मूसा अलैहिस्सलाम का भी किस्सा हम बता चुके ना, जब उनका फिरौन से बातचीत हो रही थी एक मैदान में, यानी नुजूमियों और जादूगरों के साथ उनका मुकाबला हुआ था, तो लोगों ने कहा तो ये तो सरासर जादू है बोले थे, लेकिन बाद में जब उनकी लाठी डालते ही अजदा बन के उनकी पूरी रस्सियों को निगल गई थी, तो तब लोगों को क्या ईमान आ गया था कि ये अल्लाह का कलाम है, वो जादूगर ईमान ले आए थे। तो जादूगर जानता है हक बात क्या है और जादू क्या है। तो अल्लाह सुब्हान ताला यही बताने के लिए यहाँ पर दोनों फरिश्तों को ये देके भेजे थे, जादू और मोजिजों में फर्क करें, दोनों में फर्क करके लोगों को कुफर से, शिर्क से बचाना अल्लाह सुब्हान ताला चाहते थे। और फरिश्तों को आजमाइश बनाकर भी भेजा गया था कि कौन अल्लाह सुब्हान ताला की नाफरमानी करता है, कौन ईमान के बदले में जादू सीखता है, कौन कुफर करता, कौन मोजिजे देखकर ईमान लाता, ये भी एक आजमाइश के लिए हो सकता। और ये दोनों फरिश्ते जो थे ना, हारूत व मारूत, ये दोनों जब तक जादू किसी को नहीं सिखाते थे, जब तक उन लोगों को ये ना बता दें कि जादू सीखना कुफर है और ये हम आजमाइश के लिए भेजे गए हैं, उसके बावजूद भी उनके पीछे लग के दोनों में हम जादू में और मोजिजों में फर्क करना चाह रहे हैं, ऐसे हीले बहाने करके फरिश्तों के पीछे लग के ये लोगों ने जादू सीख तो लिया, सीखने के बाद इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ा काम ये लोग क्या करते थे, मियाँ बीवी में तफरका डालना, जुदाई डालना और अच्छे घरों को तोड़ देते थे। जो कोई शैतान शौहर बीवी में लड़ाई झगड़ा करा के आता, उन लोगों में जुदाई डाल देता, तलाक दिला के आता, वैसे शैतान को उनका जो सरदार होता ना, जिनों का भी सरदार हुआ करता, तो वो सरदार उनके लिए बहुत खुश होता, उनको अपने साथ बिठाता अपने तख्त पे और फिर उनके लिए शाबाशी देता। क्योंकि इससे क्या है, नस्लें बिगड़ जाती। अगर जब किसी के पास तलाक होती हुई देखेंगे तो बच्चे बिखर जाते, माँ बाप की वजह से बच्चे सफर होते, तो नस्लें बर्बाद हो गई ना वहां पर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह जादूगरी के कामों को रोकने के लिए तमाम जादू के इल्म की जो जो किताबें थी उन सबको लेकर अपनी कुर्सी या तख्त जो कुछ भी था वो उनके उसके नीचे दफन कर दिए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद एक शैतान ने लोगों से कहा कि मैं तुम्हें ऐसा खजाना ना बताऊं जिससे तुम सारी जिंदगी गुजार सको, यानी जादू करके पैसा कमाओ, ये मतलब था उसका। और वो उस कुर्सी के करीब कोई शैतान जाता ना तो वो जल जाता था, तो इसीलिए वो खुद तो नहीं गया, लेकिन लोगों को यानी क्या बोलना चाहिए, लोगों को बहकाया, फुसलाया। तो लोगों ने क्या किया, वो कुर्सी के नीचे खोदना शुरू कर दिया। जब खोदा तो वहां पर जादू की किताबें निकली। तो शैतान ने कहा, देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि सुलेमान अलैहिस्सलाम नौजुबिल्लाह वो कोई नबी नहीं थे, बल्कि उनकी हुकूमत सारी कायनात पर चलती थी, तो इस जादू की वजह से चलती थी। तो कैसे कैसे देखे यहाँ पर शैतान ने कैसी चाल चली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत नहीं बल्कि जादू से हुकूमत करते थे ये बताने पर अल्लाह सुब्हान ताला ने उनकी बारात में ये आयतें नाजिल फरमाई। उसमें क्या फरमाया अल्लाह सुब्हान ताला, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर यानी जादू सहर नहीं किया, बल्कि ये कुफर का काम शैतानों का था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुव्वत इख्तिदार का राज जादूगरी नहीं बल्कि वो अल्लाह सुब्हान ताला की नेमत फजीलत थी जो उनको दी गई थी। उन लोगों ने पहले मोजिजे और जादू में फर्क मालूम कर सके ये कहकर जादू सीखा था, लेकिन आगे चल के शैतान ने उनको बहका दिया, तो ये लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हारूत मारूत जब भी कोई इंसान उनके पास सीखने के लिए आता था जादू, उन्होंने तो हमेशा कहते थे कि हम अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से बंदों की आजमाइश के लिए आए, ये इल्म ना सीखे, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मानते थे। जैसे हम अपनी बात को सही साबित करने के लिए किसी बड़े आलिम का नाम लेकर कहते हैं ना कि वो भी ये करता है, वो भी ये कहता है, ताकि लोग आप जो कर रहे हैं उसको सही मान लें। उसी तरह उन शैतानों ने भी सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से जादू को मंसूब कर दिया, ताकि वो लोग जो करेंगे, जो जादू करेंगे, तो वो जादू की तालीम लोग भी सीखने आएंगे, उससे उनका कारोबार भी बढ़ जाएगा। जो कोई अल्लाह की किताब को छोड़ते हैं ना, अल्लाह की किताब को समझ कर नहीं पढ़ते, तो वो लोगों के लिए जब इल्म नहीं होने की वजह से ये तरह तरह की गुमराहियों में कुछ और चीजों के पीछे, जैसा ये लोगों ने जादू के पीछे लग गया था, वैसा ही इंसानों का हर किसी का हो सकता।
تو ہم اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے. اب یہاں بتاؤں کفر کیا ہے. کفر سے مراد ہم پچھلی آیتوں میں بھی پڑھ چکے. کفر سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احکامات کا انکار کرنا. اور کبیرہ گناہ تو بہت سارے ہیں، اس میں سے میں یہاں پر چند 7 کبیرہ گناہ بتا دوں. سب سے پہلا اس میں کیا ہے؟ شرک کرنا. دوسرا جادو کرنا. تیسرا ناحق قتل کرنا. چوتھا سود خوری کرنا. پانچواں یتیم کا مال کھانا. چھٹا جنگ سے بھاگنا. جب کافروں کے ساتھ میں جنگ ہوتی نا تب کوئی مسلمان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگتا نا وہ وال، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. ساتواں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. شیطان سے کیا مراد ہے؟ جو چیز جن اور انسان دونوں میں ہوتے یہ شیطان، یعنی شیطانی صفات انسانوں میں گناہ کرنے سے آ جاتی ہے نا، تو اسی لیے وہ شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں اور اسی کے نقش قدم پر چلتے ہیں. تو شیطان جن اور انسان دونوں میں سے ہوتے ہیں. بچوں کو شیطان کبھی نہیں کہنا چاہیے. بچے اگر شرارت کر رہے ہیں تو ان کو شرارتی ضدی یہ کہہ سکتے، لیکن شیطان کی عادت، شیطان کے حرکتیں اب ہم پڑھ چکے نا، تو کبھی بھی اپنے بچوں کو ایسا برا لقب نہ دینا، نہ اس سے ان کو پکارنا چاہیے. جادو کی اصلیت کیا رہتی ہے؟ اس کی حق کو باطل کر کے دکھاتے. اور اس میں بھی میں کچھ پوائنٹس بتانا چاہوں گی. جادو کے ذریعے کیا کیا چیزیں ہو سکتی. جادو جنات کے ذریعے کیا جاتا. دوسرا شوہر بیوی میں تفرقہ ڈالا جاتا. تیسرا بیماریوں میں مبتلا کر دیا جاتا. شوہر کو بیوی کے ساتھ تعلقات کے قابل نہیں رکھتا. ایک دوسرے میں دشمنی پیدا کر دیتا. ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا. جادوگروں کا مقصد ہنستے بستے گھروں کو اجاڑنا ہوتا ہے. جادو کا علم نازل کرنے کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو معجزے دیے اس میں اور جادو میں دونوں مختلف چیزیں ہیں، یہ بتانا مقصود تھا. لیکن انسان نے کیا کہا؟ شروع میں تو بس انہوں فرق معلوم کرنے کے لیے جادو سیکھا. بعد میں تھوڑے دن ہونے کے بعد شیطان ان کو گمراہ کر دیا. جب کبھی ہم ایک غلطی کرتے نا تو تھوڑا سا ہمارے دل میں کھٹکا لگتا کہ ہم یہ غلط کیے، لیکن جیسے بار بار غلطی گناہ کرتے جاتے نا تو جب گناہوں کا اثر اتنا ہو جاتا کہ ان کو گناہ نہیں لگتا، برائی نہیں لگتی. اسی طریقے سے ان لوگوں کو بھی جادو اب برا نہیں لگنے لگا، وہ اس کو غلط استعمال کرنے لگے. اور جو بھی جادوگر ہوتے نا ان کے پاس ایسے ہی جادو کا علم نہیں آ جاتا. جادو سیکھنے کے لیے ان کو کیا کرنا پڑتا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کرنا پڑتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کفر شرک کر کے جادو کا علم سیکھتے لوگ، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اب ان لوگوں کی گندی حرکتیں کیا کیا ہوتی معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں. یعنی جتنا زیادہ یہ لوگ جنات کو خوش کریں گے اتنا زیادہ یہ لوگوں کی جنات مدد کرتے. جیسے جادوگر پہلے قرآن کی آیتوں کو الٹا لکھتا ہے اور ماہواری کے نجاست والے خون سے اس کی آیتیں لکھتے، بغیر وضو کے نماز پڑھتے، جنابت کی حالت میں رہتے اور محرم رشتوں کے ساتھ زنا کرتے. نعوذ باللہ، میں کسی سے سنی کہ پاؤں میں قرآن کی آیتیں باندھ کر بیت الخلا میں جاتے یعنی ٹوائلٹ میں جاتے. اور بس یہ بھی سنی کہ میں مطلب نعوذ باللہ قرآن مجید پہ بیٹھ کر بھی وہ لوگ جادو سیکھتے. اور جتنا زیادہ نافرمانی کریں گے، قرآن کی بے عزتی کریں گے، بے ادبی کریں گے، اتنا زیادہ ان کے شیطان کا جو سردار ہے نا وہ خوش ہو کے اپنے چیلوں میں سے ایک چیلا اس کو موکل بنا کر دے دیتا. تو اکثر لوگ بولتے ہیں نا ہم موکلوں سے کام لیتے، سنے ہوں گے آپ لوگ. تو یہ موکل کیسے حاضر ہوتے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے، شرک کرنے سے، یہ گناہ کے کام کرنے سے. اسلام میں جادو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا، نجومی کاہن کے پاس اپنا غیب کا علم معلوم کرنے، اپنا فیوچر میں کیا ہونے والا ہے معلوم کرنے جانا، یہ سب کفر ہے. اب ہم جا کے اگر معلوم کر بھی لیں تو ہم کچھ بدل سکتے اپنی زندگیوں میں؟ جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو پھر کیا ایسی جگہوں پر جا کے ہم اپنا ایمان کیوں بیچیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ یہ لوگوں نے کفر کے بدلے میں اپنا ایمان فروخت کر دیا. تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو جادو بھی اثر نہیں کرتا. اور اس سے بچنا چاہ رہے ہیں آپ حاسدوں کے حسد سے، جادو سے، شیاطین سے اگر بچنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے قرآن اور حدیث میں اذکار بتائے گئے، اس کی پابندی سے پڑھا کریں تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں. جو کچھ بھی ہمیں مانگنا ہے
यानी अपनी मुश्किलों का हल निकालना है, अपने बीमार लोगों की सेहत के लिए दुआ करना है, जो भी करना है अपनी मुश्किल कुशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ही जाने और उसी से मदद मांगे। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अगर दर से ना मिला तो किसी और के दर से आपको मिल सकता नहीं मिल सकता। तो आपका ईमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर इतना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर यकीन और तवक्कुल इतना होना है कि जो कुछ भी हम मांगे, हदीस मुबारक में है कि अपने जूते का तस्मा अगर टूट गया तो वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगना है। तो हम इतनी बड़ी-बड़ी चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से छोड़कर ये जादूगर, आमिल, मुल्ला इनके पास जाकर कैसे हम यकीन कर सकते कि वो लोग हमारी मदद करेंगे? और जादूगर का अगर इस्लामी हुकूमत होती ना, कत्ल करना भी जायज है। तो ये बहुत बुरी चीज है, इससे हमें बचना चाहिए। जो पिछले जमाने में हम में से कोई अगर कर चुके, इनके पास जा चुके, या न्यूज़पेपर में कोई ज़ोडिएक साइंस वगैरह देख के हमारा ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, ये जो चीजें देखते, अपने हाथ बता के हाथ की लकीरें पढ़ाने लगाते, जिसके हाथ ही कटे हुए हैं तो उसकी ये तकदीर कुछ नहीं है क्या? है ना? जिसके हाथ नहीं होते उनकी भी तकदीर है, तो फिर उनकी लकीरें नहीं है तो फिर उनकी भी तकदीर नहीं होनी चाहिए थी, फिर वो लोग भी तो जिंदगी गुजारते ना। तो ये सारी चीजें शैतान के खेल है, इससे हमें बचना चाहिए। ऐसे लोगों का ना कोई हिस्सा आखिरत में नहीं है। और हर काम में अगर अपने को कोई समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इस्तिखारा का तरीका सुन्नत तरीका है। इस्तिखारा का क्या मतलब है? 2 रकात नमाज पढ़ें, उसके बाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह तकबीर बयान करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद एक दुआ है, वो दुआ पढ़ें और जहाँ कहीं भी 2 मरतबा हाज़िल अम्री लफ्ज़ आता, वहाँ पर जो मकसद के लिए आप पढ़ना चाह रहे हैं, उसका नाम लें। उस 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 काम में अगर आपके लिए बेहतरी है या आपके लिए बेहतर है, आपके बच्चों के लिए रिश्ता वहाँ करना बेहतर है या कोई कारोबार स्टार्ट करना आपके लिए बेहतर है, तो अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाते हैं। अगर आपके हक में बुरा हो तो उसको रोक देते। तो ये बेस्ट तरीका है। और आजकल इतनी बिदअतें निकल चुकी है, 16 सोमवार के रोजे भी रखते लोग। ये हिंदुओं का तरीका है 16 सोमवार। 16 सोमवार तो हमारे मुसलमानों की शरीयत में कोई मायने ही नहीं रखता। सोमवार का मतलब मेरे ख्याल में पीर या मंगल का कुछ दिन है सोमवार। और ये अय्याम 20 के रोजे हैं, पीर और जुमेरात का रोजा है हमारी शरीयत में। अगर रखना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पीर और जुमेरात का रोजा है। आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करना चाह रहे हैं तो अय्याम 20 के 13, 14, 15। और हर माह के पहले जुम्मे को भी रोजा रखते हुए मैं लोगों को देखी। जब मैं पूछी किस वजह से जुम्मे के दिन रोजा रखे, तो उन्होंने कहा कि हर महीने की हम पहले जुम्मे को रोजा रखते। देखिए, हमारी शरीयत में अगर आपको इल्म है ना, तो जुम्मे के दिन खास तौर से एक रोजा रखना मना है। अगर आप कंटिन्यूएशन में एक दिन पहले से रखते आ रहे हैं, बीच में जुम्मा आ जा रहा, या फिर अय्याम 20 के रोजे में आपको जुम्मा आ जा रहा बीच में, या फिर आप रोजे रमजान के खजा कर रहे थे उसमें बीच में जुम्मा आ जा रहा, तो वैसी सूरत में जायज है। मगर खास तौर से जुम्मा ईद उल मोमिनीन है, उस दिन रोजा रखने से मना किया गया। यानी इल्म नहीं होने की वजह से हम शरीयत के खिलाफ कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि नेकी का काम कर रहे हैं। और नमाज रोजा तो नेकी का ही काम है ना। तो अब जब कोई इंसान ये समझेगा कि हम रोजा रख के, रोजे का बदला तो जन्नत है, हम रोजा रख रहे हैं, क्या बुरा काम कर रहे हैं, ये तो अल्लाह का पसंदीदा अमल है, तो वो इंसान अपने आप को गलत थोड़ी समझेगा, ना कभी तौबा करेगा और इसी गफलत में उसको मौत आ जाएंगे। तो नेकी के कामों में भी हम बिदअतें ईजाद कर लिए हैं, उससे हमें बचना जरूरी है। और जिन जादूगर की पहचान हम कैसा करें, उसकी भी कुछ अलामतें मैं यहाँ बता दूं। जो कोई माँ का नाम पूछे वो जादूगर है, जिस्म का कपड़ा मांगे वो जादूगर है, जिस पर हमारा पसीना लगा हुआ होता वो मांगने वाला जादूगर होता। और मुर्गी या बकरा या गोश्त, अंडे वगैरह कुछ भी लाने के लिए कहता और जंगलों में सदका कर दो, सदका के नाम पे। सदका नहीं रहता, वो सदका करना है तो किसी गरीब मिस्किन को देना, वो सदका है। लेकिन ये लोग फलां जंगल में, फलां चौरस्ते पे, फलां कब्रिस्तान में डाल दो बोलते हैं। लेकिन ये सदका नहीं है, बल्कि जिन्नात के लिए खाने के लिए लोगों ने भेजते। अगर ये लोग जिन्नात को खाने के लिए भेजेंगे तो फिर जिन्नात उनका काम करेंगे ना। तो हम भोले भाले इंसान जिसको इल्म नहीं है वो लोग गुमराह होते हैं इनकी बातों में आके। और कोई खास किस्म का कपड़ा उड़ा देता, और उड़ाने के बाद क्या नजर आ रहा है, क्या दिख रहा है, ये बोलो वो बोलो, ये सब चीजें होती। और कुछ चीजें देते जमीन में गाड़ने के लिए, लटकाने के लिए, ये सब जादूगर की निशानी है। हर मसले का हल अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान और हदीस में बता दिया है दुआओं के जरिए, उसको पढ़ा करें। ये सारी चीजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जादू हुआ था तो उसका तोड़ क्या था? मऊज़तैन। वो छोड़ के हम, अक्सर लोग क्या कहते हैं, काला जादू हो गया हमारे पे, इसका तोड़ करना है तो फिर हमारे को जादू से इसका तोड़ है। नाउज़ बिल्लाह, ये गलत फहमी है सबकी। हमें
हमेशा वजू से रहना चाहिए, मौज़तैन पढ़ना चाहिए, पाबंदी से नमाज पढ़ना चाहिए वक्त पे, घरों से तस्वीरें निकाल देना चाहिए, म्यूजिक सुन रहे हैं अगर घर में म्यूजिक लग रहा है तो उसको बंद कर देना चाहिए, बेपर्दगी से बचना चाहिए, और बर्तन को ढांप कर रखना चाहिए, खुला रख के खाना या पानी ना पीना चाहिए। गुस्से और गफलत की हालत में शैतान हमारे अंदर दाखिल होता ना, तो हम उस वक्त में सब्र से काम लेना चाहिए। बैतुल खला में नहाने के लिए जाओ या टॉयलेट करने के लिए जाओ, ज्यादा देर वहां नहीं बैठना चाहिए। और बाथरूम में जा रहे हैं तो दुआ पढ़ के जाना चाहिए, नहा रहे हैं तो दुआ पढ़ के अंदर जाना चाहिए, ताकि हमसे शैतान दूर रहे। अब देखे ना, कोविड पीरियड में कैसा हुआ था, जिस किसी की भी इम्यूनिटी कम थी उन पे वायरस अटैक अटैक फौरी कर रहा था, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उस पर असर नहीं हो रहा था। तो वैसे ही हमारा ईमान अगर मजबूत रहा, ईमान की इम्यूनिटी मजबूत है, तो हमारे साथ शैतानी हमले कुछ भी नहीं हो सकते। हमारे को अगर अपनी इम्यूनिटी ईमान की बढ़ाना है तो क्या करना है, कुरान और जिक्र कसरत से पढ़े, सूरह बकरा की तिलावत किया करें, ताकि हमारी ईमान की इम्यूनिटी बढ़ जाए, और शैतान का हमला, जादू का हमला, हसद का, हासिदों के हसद से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद घर को साफ सुथरा रखें, गंदगी जहां कहीं रहती वहां से फरिश्ते चले जाते हैं और शयातीन आ जाते। हैज में अस्कार पढ़ना चाहिए। हैज में जब इंसान 7 दिन तक नापाक रहता, नमाज नहीं पढ़ता, वजू भी नहीं करते, हम लोग ऐसे ही रहते ना, तो उस वक्त में शैतान का हमला होने का ज्यादा चांसेस रहते। तो हैज की हालत में भी आप वजू कर लें, अस्कार पढ़ें, जबान तो आपकी पाक होती। तो अस्कार की पाबंदी ज्यादा से ज्यादा हैज के दिनों में और पाबंदी के साथ करना जरूरी है। कम से कम अगर आप अस्कार पूरे नहीं पढ़ सक रहे हैं, सूरह बकरा नहीं पढ़ सक रहे हैं, तो ये 5 चीजों की पाबंदी तो जरूर कर लें आप। जिसमें से सबसे पहली चीज क्या है, आयतल कुर्सी। मऊजात, मऊजतैन का मतलब क्या है, मऊजात का मतलब क्या है पता है आप लोगों को? मऊजतैन का मतलब दो, लास्ट में यानून लग जाए तो दो के लिए हो जाता हो, यानी सूरह फलक और सूरह नास। मऊजात अगर हम बोलेंगे तो उसमें सूरह अखलास भी शामिल हो जाता। कुल वल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये तीनों को मऊजात कहा जाता है। और चौथा कलमा 100 मरतबा, ये चौथा कलमा तो ये हमारे इंडिया पाकिस्तान के लोग नाम दिए, इसका कोई नाम नहीं है पहला दूसरा तीसरा चौथा कलमा, बल्कि ये ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ये दुआ है। अरफात के दिन भी पढ़ने की इसकी हदीस में ताकीद की गई है। अगर कम से कम आपको 100 मरतबा सुबह 100 मरतबा शाम में नहीं हो सक रहा तो 10-10 बार तो पढ़ना ही चाहिए। और नजर बद से, जादू से बचने के लिए बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मी शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, सुबह 3 मरतबा, शाम में 3 मरतबा। और वैसे ही औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक, ये भी है। और ये अस्कार के साथ में दुरूद अव्वल और आखिर पढ़ के अपने आप पर भी दम कर लें, अपने बच्चों पर भी दम कर लें। ये हमारे लिए नजर बद से इलाज, हासिदों के हसद से इलाज, जादू से बचने का इलाज, ये हो जाएगा। और अगर एक ये भी तरीका है, बेरी के 7 पत्ते लें, उसको अच्छे से पहले धो लें, उस पर ये चीजें जो मैं 5 चीजें बताई वो पढ़ के दम कर लें। दम करने के बाद वो पानी 3 घूंट पी लें, उसके बाद वही पानी से नहा लें, पानी नहाने के पानी में मिला के नहा लें। इससे भी जादू, जिन्नात, हसद, नजरबद ये सब चली जाती। और एक हदीस के मुताबिक 7 अजवा खजूरें जिस दिन भी वो सुबह नहर पेट खा लेगा, उस दिन उसको जादू का असर नहीं होगा। तब हर आम इंसान के लिए अजवा खजूरें क्योंकि महंगी होती ना, ये खाना खरीदना मुमकिन नहीं है, तो ये आयतें पढ़ के दम कर लिया करें। सबसे ज्यादा खुशी शैतान मियाँ बीवी में फूट डालकर महसूस करता है, और उनका सरदार भी उसको अपने पास बिठा लेता है, क्योंकि इससे नस्लें खराब होती, मैंने बताई ना। बाज लोग घरों में एक दूसरे के खिलाफ भड़का कर फूट डालते, जैसे कि सास, ननंद, देवरानी, जिठानी बार बार एक ही बात शौहर को बोलते, शौहर की बात बीवी को बोलते। तो इन दोनों को सुनते 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 एक बार वक्त ऐसा आ जाता कि इंसान बदजन हो जाता और दोनों में लड़ाइयां शुरू हो जाती, फूट पड़ती। तो ये भी काम शैतान की खसलत वाला काम है। इंसानों में जो इंसान और शैतान दोनों में, जिन्नात और शयातीन, ये इंसान की शक्ल में भी होते, मैं बताई थी ना, जिन और इंसान दोनों में होते बोली थी ना, ये ऐसी हरकतें करने वाले शैतान कहलाते। तो ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए। अगर हम किसी का भला ना कर सकते तो कम से कम बुरा ना करें। अब इंसान के पास काम नहीं होता, बुढ़ापा आ जाता, कमजोरी हो जाती, घर में बहुएं आ जाती, बेटियां बड़े हो जाती, तब उनको काम काज कुछ नहीं होता,
तब इधर की बातें उधर लगाना, उधर की बातें इधर लगाना, बेटे के साथ में लाड़ प्यार दिखाना, हमदर्दी दिखाना, बहू के खिलाफ भड़काना, या फिर कोई रिश्तेदारों को फोन करके उनकी बहू के बारे में, इनके बारे में, खानदान वालों के बारे में गीबत करना, चुगली करना, ये सारी चीजें हमारे को ये कुफर की तरफ लेके जाती है। इन सब से बचना है तो हमें क्या करना है? सबसे आसान चीज अल्लाह का जिक्र, कुरान की तिलावत करना चाहिए। और सबसे अच्छा कुरान को अगर सीखने में हम वक्त लगाएंगे ना, हमारे पास बेकार का वक्त ही नहीं होगा, तो हम ये चीजें करेंगे भी नहीं और हम नेकियों में इजाफा करेंगे। कुरान के साथ अगर अपना रिश्ता मजबूत कर लेंगे तो नेकियों में इजाफा करेंगे और अल्लाह से रिश्ता हमारा मजबूत होगा। जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला की बातों पर यकीन नहीं है, वो लोग ही जादूगरों के पास जाते हैं। तब आप सोचे कि आपको अल्लाह पे भरोसा करना है या यानी पीर मुर्शद शयातीन पे भरोसा करना है। इस आयत में साफ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा दिए, जादू सीखने में नफा नहीं बल्कि नुकसान है। ईमान ही चला जाता तो फिर आखिरत तो बर्बाद हो गई ना। अगर हम जादू के जरिए अगर दुनिया कमा भी ले तो ईमान के बदले में हम दुनिया कमा रहे हैं, तो जिसका ईमान ही नहीं है उनके आखिरत में क्या हिस्सा है? आग है। तो हमें इससे बचना चाहिए नहीं चाहिए? अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जो कुछ दे रहा उस पर शुक्र अदा करें और जो कुछ भी हमें चाहिए उसी के आगे हाथ फैलाएं और उससे कहना है कि अल्लाह हमें जो भी देना है आप ही देना है, हम तेरे दर के सिवा किसी और के दर पे हाथ फैलाएंगे ना सर झुकाएंगे। चाहे वो बीमारी से शिफा हो या तंगदस्ती से खुलासी हो, रिस्क हो, औलाद नहीं है तो अगर औलाद मांग रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से ही मांगना चाहिए, क्योंकि देने वाली जात तो वही है। जादूगर खुद को शैतान के सुपुर्द करके जादू सीखते हैं, यानी अल्लाह के साथ नाफरमानी करते हैं, तभी जिन्नात उनकी मदद करते हैं। ऐसी कमाई से क्या फायदा जो आखिरत में उनके लिए आग खरीद रहे वो लोग। या दुनिया का जो समंदर है ना, आखिरत की जिंदगी है, उसमें एक उंगली डुबो कर निकाले तो जितना पानी हमारी उंगली को लगता ना, वो उतनी ही हमारी दुनिया की जिंदगी है। अगर हम इतनी छोटी सी जिंदगी के लिए हम अपनी समंदर जैसी जिंदगी को खराब कर सकते, वहां पर तो हमेशा रहना है, वहां तो कोई मौत भी आने वाली नहीं है, फिर वहां से कहीं दूसरी जगह जाने का कोई चांस भी नहीं है। काश अगर हम आज कुरान को पढ़ने के बाद आखिरत की नेमतों को जान ले तो ये सब चीजों से बच सकते और अल्लाह सुब्हानहू तआला पर यकीन भी हमारा पक्का हो जाएगा और कुफर से भी बच जाएंगे इंशाल्लाह। आयत 103 की तफसीर देखें, अगर लोग ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो दुनिया में ना भी मिले तो आखिरत में जरूर अजर मिलेगा, ये यकीन उनको होता। काश ये लोग जान लेते, क़यामत के दिन की हसरत से बच जाते। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत है, पिछले कौमों के बारे में हमें बता के हमें ये चीजों से बचाना चाह रहा। अगर उसके बावजूद भी अगर हम बेवकूफी कर रहे हैं तो वो हमारा खराबा हम कर रहे हैं। आयत 104 की तफसीर देखें, ऐ ईमान वालो तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राइना ना कहा करो बल्कि उन्जुर ना कहो, हमारी तरफ देखिए और गौर से सुनते रहें, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। या राइना का मतलब दो है। एक मतलब तो ये था हमारा लिहाज करिए, अगर कुछ बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे समझ में ना आई तो सुनने वाला राइना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करता था। उसका मतलब जैसा हम स्कूल में अगर कोई टीचर समझा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज मी बोल के बोलते ना, तो उसी तरीके से राइना था, अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए राइना कहते थे साहब। और दूसरा क्या है इसका? दूसरा मतलब यहूदी जो लेते थे ना अपने बख्स व अनाद तकब्बुर हसद की वजह से उसको थोड़ा सा बदल कर राइना ईना ऐन के बाद या भी लगा देते थे। उसके मायने क्या हो जाते थे? बदल जाते थे उसके मायने, हमारा चरवाहा या अहमक वगैरह होते। तो जैसे ही यहूद की ये फितरत थी, यानी बातों को बिगाड़ना, जो अल्लाह का हुक्म है उसके खिलाफ वर्जी करना, यहाँ पर भी उन लोगों ने राइना कहने लगे। अगर पहले तो राइना बोले तो आम इंसान को समझ नहीं आती थी कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन जिसको इल्म था वो लोग अरब भी जानते थे, वो बारीकी से कभी सुनने गौर करे पूछते थे तुमने ये क्यों कहा, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो राइना कहा, राना नहीं कहा, ये तो तुम गलत सुने, ऐसा मुकर जाते थे। जैसा कि और एक जगह है हदीस में, अस्सलामु अलैकुम, इसका मतलब क्या है? सलामती हो तुम पर। उसके बजाय लोग क्या कहते थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी मिलने आते, अस्सलाम अलैकुम, नाउजुबिल्लाह, इसका मतलब क्या है? तुम पर मौत आए, कहा करते थे। जैसा कि हम पिछली आयतों में पढ़ चुके, हित्ततुन यानी बख्शिश मांगते हुए दाखिल होने का हुक्म हुआ था, तो ये लोगों ने क्या कहा था? हिन्नतुन, बख्शिश मांगने के बजाय गेहूं की बाली कहने लगे। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो भी हुक्म आता, यहूद की एक फितरत बन गई थी कुछ लोगों की कि उसको बिगाड़ के बात करना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस दो महीने वाले लफ्ज थे उसको मिटाकर उनजुरना,
राइना कुरान में मौजूद है, लेकिन वो कहने से मना कर दिया, उसको मनसूख कर दिया। उसके बजाय मोमिनों से कहा कि उनजुरना कहा करो। उनजुरना का मतलब हमारी तरफ देखिए, तवज्जो फरमाए, ये हो सकता है। अब यहाँ पर देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों काफिरों को, मुनाफिकों को नहीं कहा कि तुम ऐसा कहना बंद कर दो, क्योंकि उनको कहना तो बेकार था ना। उनको तो मालूम था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को तो मालूम था कि ये सरकश कौम है, लेकिन मोमिनों से उम्मीद थी अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये इताअत करेंगे, इसीलिए मोमिनों से कहा कि ये अल्फाज राइना के बजाय उनजुरना इस्तेमाल करो। इससे हमारे लिए और क्या बात समझ में आ रही? इससे हमें दो बातें सिखाई गई है। ऐसे अल्फाज जिसके इस्तेमाल से किसी की तनकीद की जा रही हो या उनकी बेइज्जती की जा रही हो या उसका अदब एहतराम के लिए इस्तेमाल करना सही नहीं है, तो वो चीजों को बदल देना चाहिए। और ये पता चलता है कि दूसरा, कौल और अमल दोनों से हमें यहूद व नसारा की मुशाबहत इख्तियार करने से बचना जरूरी है। या हदीस में है ना, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से हो जाएगा। और ये वईद से अगर हम बचना चाहते हैं तो फिर हम इनकी कॉपी करने से बचना है। तो सलाम भी करते वक्त अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए। पूरा सलाम अगर कहेंगे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, तो आपको 30 नेकियां तो मिल गई। आप जितना सलाम कहे, अस्सलाम बोलेंगे तो 10, अलैकुम बोले तो 10, रहमतुल्लाहि बरकातहू बोले तो 10। अस्सलामु अलैकुम की 10 है, रहमतुल्लाहि के 10 है और बरकातहू के 10 है, तो आपको 30 नेकियां तो ऐसे ही मिल गई। अब यहाँ पर देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला अफसोस के साथ कह रहे हैं कि मुसलमान भी आज गैर कौम के तरीकों को अपनाने में खुद को मॉडर्न समझ रहे हैं। दो माने वाली बातें, तंजिया कहना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी की बेइज्जती करना, रैगिंग करना, ये सब चीजें करके हम क्या समझते? हम अपने आप को अक्लमंद समझते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं, इसीलिए मोमिनों को ताकीद की गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी बात है उसको पहले गौर से सुने, ताकि दोबारा पूछने की नौबत ही ना आए। क्योंकि बार बार सवाल करने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देते जाने में तकलीफ महसूस होती थी। क्योंकि एक तो जब वही नाजिल होती थी, उसका बोझ से बहुत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म वजन हो जाता था, पसीने में शराबर हो जाते थे। अब उसके बाद अभी लोगों के कसरत से सवाल, और कभी-कभी ऐसा होता था कि वही का दौर था ना, अगर इन लोगों के सवाल की वजह से कोई हुक्म आ जाता तो फिर उम्मत के लिए उसका अमल करना मुश्किल हो जाता था। तो इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और ताज़ीम करने के लिए आम इंसानों को कैसे बात करना चाहिए, वो सिखाया गया। और अगर काफिर अगर उस पर अमल नहीं कर रहे हैं तो उनका अज़ाब वो भुगतेंगे क़यामत के दिन, उनका मामला अल्लाह सुब्हानहू तआला के सुपुर्द है। तो हमें उसमें कोई मतलब सोचने या उनकी मदद करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इल्म लेने वालों को अदब भी सिखाया गया इस आयत में। जो आपको सिखा रहा है, चाहे वो स्कूल का टीचर हो या कुरान की टीचर हो, चाहे कोई भी हो, उसकी इज्जत किया करें। और दूसरा, सिखाने वालों की बातों को गौर से सुने, चाहे वो क्लास का लेक्चर ही क्यों ना हो, अरबी का हो या स्कूल की क्लासेस का हो। अगर आप गौर से सुनेंगे तो अभी लेसन को आपको क्या है उसमें समझ में आता। अगर आप दिल और दिमाग लगाकर सीखना चाहते, उसके बावजूद कोई बात नहीं समझ में आ रही, तो फिर आप वैसी सूरत में सवाल कर सकते। आयत 105 में देखें, अहले किताब के काफिर और मुशरिकीन हसद की वजह से नहीं चाहते थे कि रब की कोई भी भलाई मुसलमानों को पहुंचे। उससे क्या होता है, यानी कोई काफिर अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको कोई नेमत से नवाजना चाह रहा, कोई आपके रिश्तेदार, कोई दोस्त अहबाब में से, तो कोई दुश्मन, कोई हसद की वजह से वो चाहता है कि आपका नुकसान हो जाए या आपको नेमत ना मिले, तो क्या वो लोग रोक सकते? एक दुआ भी है ना हदीस में, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैता वला मुतिया लिमा मनाता वला यनफउ ज़ल जद्दी मिनकल जद्दी। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको देना चाहे कोई नहीं रोक सकता, और जिसको अल्लाह ताला रोक ले उसको कोई नहीं दे सकता। ये मायने हैं उसके। तो अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला जो नेमतें देना चाह रहे हैं आपको तो मिल के रहेंगी, चाहे मुशरिकीन काफिर को नागवार गुजरे, गुजरते रहे। अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसको अपनी रहमत अता करता है। यहाँ पर रहमत और फजल से मुराद नबूवत, रिसालत है। और जंगें जब होती थी ना काफिरों से, मुशरिकों से, उसमें कामयाबी होना, इनको गनीमत का माल मिलना, लौंडी गुलाम कैदी बनकर जो आते हैं उनको लौंडी गुलाम की शक्ल में घर के काम काज करने, उनकी खिदमत करने के लिए मिल जाना, ये सब चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला का बड़े फजल है ये मोमिनों पर। ये उनको देखा नहीं जाता था। जो कोई हसद करे वो खुद की ही जिंदगी खराब कर रहा, अपनी नेकियों को जाया कर रहा। हसद इंसान की नेकियों को खा जाता है।
اور وہ خود ایک تو دنیاوی لحاظ سے بھی وہ کڑ کے جلن میں حسد میں اوٹتے جلتے جو رہتا نا، وہ اپنی صحت بھی خراب کرتا، بی پی بھی بڑھا لیتا، سکون بھی برباد کر لیتا، نہ سکون سے سو سکتا، نہ سکون سے کھا سکتا، نہ عبادت میں دل لگا کے پڑھ سکتا. تو خسارہ کس کا ہو رہا؟ اس کا خود کا ہو رہا. جو نعمت ہمیں نہیں ملی اور جو بھی ملتے کسی کو دیکھے تو ہمیں اس میں حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہمارے مومن بھائی کو دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دینے پر قادر ہے، تو ہمیں بھی عطا کر. دعا کرو، اللہ سے مانگو. کسی سے حسد کر کے اپنے نیکیاں ضائع کرنے سے تو بہتر ہے جو چیز اس کو دی جا رہی اسی کی طلب آپ کو ہے تو آپ اللہ سے مانگو. آیت 106 کی تفسیر دیکھیں. جب آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی اور آیت لے کر آتے ہیں. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ یعنی قرآن میں بعض آیتیں منسوخ کر دی گئی. منسوخ کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنے کو کہتے ہیں. یہود کو ایک اور موقع مل گیا تھا اعتراض کرنے کا. اگر یہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، تو پھر کیوں یہ اس کی آیتیں بدلی جاتی؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طریقے بتائے گئے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت مصلحت جو ہوتی نا وہ بیان کرنا ضروری سمجھتی ہوں میں. یہاں قرآن میں 3 طرح کے نسخ موجود ہے. ایک نمبر 1 تلاوت منسوخ کی گئی لیکن حکم اس کا باقی رہا. مثال کے طور پہ رضاعت، یعنی جب کوئی عورت 5 مرتبہ کسی کو دودھ پلاتی تو اس سے اس کے بچوں کا رشتہ رضاعت کا بن جاتا، رضاعت کے بھائی بہن بن جاتے، ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں کر سکتے. تو یہ رضاعت کے رشتے ہیں، جیسے خون کے رشتے سے محرم بن جاتے، رضاعت کے رشتے سے بھی ایک دوسرے کا محرم بن جاتے. دوسرا تلاوت اور حکم دونوں منسوخ کر دیے گئے، نہ اس کی تلاوت باقی ہے کوئی آیت کی، نہ وہ حکم پہ عمل کرنا ہے. تو یہ دوسرا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ تلاوت باقی ہے لیکن حکم منسوخ ہو گیا. مثال کے طور پہ ایسا قرآن میں 5 جگہ ہے، آپ اگر لکھنا چاہ رہے ہیں تو لکھ لیں. پہلا سورہ بقرہ آیت 181 اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے وصیت کرنے کا حکم دیا تھا، مگر جب سورہ نساء میں وراثت کا حکم آ گیا، یعنی وراثت کیسے تقسیم کی جائے گی، وارثوں کا کتنا حصہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود مقرر کر دیے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ حصے مقرر کرنے کے بعد وصیت اپنے وارثوں کے حق میں کرنا جائز نہیں ہے. تب یہ آیت منسوخ ہو گئی، اس کا حکم منسوخ ہو گیا. آیت تلاوت باقی ہے، اس کا حکم منسوخ ہو گیا. اب وصیت کا حکم منسوخ ہو گیا، مگر اس میں وصیت ہم کس کے حق میں کر سکتے ہیں؟ جو وارث نہیں ہوتے، جیسے کہ گود لیا ہوا بچہ، جو رشتے ہمارے خون سے حسب سے نسب سے نہیں ہے، جس کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، جیسے خالہ کے بچے، ماموں کے بچے، بھتیجے، بھانجے، یہ لوگوں کو دے سکتے. کوئی راستہ چلنے والے، کوئی غریب مسکین، یا کوئی مسجد کے لیے، کوئی مدرسہ کے لیے، ان کاموں کے لیے ہم وراثت کی وراثت تقسیم ہونے سے پہلے 1/3 مال کی وصیت کر سکتے. اور سورہ نساء آیت 15 میں حکم ہے جو بھی بے حیائی کا کام کرے ان کو قید کیا جائے. یہ آیت منسوخ ہو گئی. سورہ النور کی آیت نازل ہوئی نا، جس میں شادی شدہ زانی اور کنوارے زنا کرنے کی سزا رجم یا پھر کوڑے مارنے کی جو سزا آئی، یہ سزا آنے کے بعد یہ قید کرنے کی سزا منسوخ ہو گئی. سورہ بقرہ آیت 214 میں عورت کی عدت، یعنی شوہر کے انتقال کے بعد عورت کی عدت 1 سال کی تھی. وہ اس لیے تھی جب شروع کا زمانہ تھا، ماں باپ ایمان لاتے تو اولاد کافر رہتی تھی، مشرک رہتی تھی، اور اولاد اگر ایمان لے آئی تو ماں باپ کافر مشرک رہتے تھے. تو جب ایسی حالت میں اگر کسی کی شوہر کی وفات ہو جاتی، وہ بیوہ ہو جاتی، تو کس کے پاس جائیں گے؟ تو اس میں بھی حکمت دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مصلحت دیکھیں، ہمارے انسانوں کا ہی فائدہ ہے. تو ویسے زمانے میں وہ عورت کو بے سہارا چھوڑنے کے بجائے شوہر کے گھر میں 1 سال رکھنے کا حکم تھا. جب معاشی حالت سب کے اچھے ہو گئے، یعنی مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، خاندان ایمان لانے لگے، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت سورہ بقرہ کی 284 میں عورت کی عدت کو کم کر کے 4 ماہ 10 دن رکھے. اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت اس کی ڈلیوری تک رہیں گے. تب یہ 214 جو آیت تھی 214 کا حکم منسوخ ہو گیا، اور اس کو نسخ کرنے والی آیت کون سی تھی؟ 284. اب چوتھی قرآن میں اور ایک کون سی آیت ہے جو منسوخ کی ہوئی؟ سورہ انفال کی آیت 65.
یہ منسوخ ہوئی کون سی آیت سے؟ آیت 66 سے، سورہ انفال کی آیت 66 سے. یعنی پہلے 65 میں کیا کہا گیا تھا؟ ایک مسلمان جب جنگ کے لیے جا رہا تو 10 کافروں سے مقابلہ کرے گا. پھر مسلمانوں کی کمزوری دیکھ کے، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، ان کے دلوں میں جو شک شبہ آ رہا تھا، ان کی کمزوری تھی. ایمان تو لوگوں کا مضبوط تھا، لیکن لوگ سمجھتے تھے کہ اتنے سے ہم ایک مسلمان کمزور، ایک تو ان کو کھانے پینے کو بھی صحیح نہیں ملتا تھا، معاشی بھی حالات صحیح نہیں تھے، ہتھیار بھی نہیں تھے، تو لوگوں کے دل میں ایک رہتا نا ویسا کچھ تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ صحابی کے بارے میں ہم کچھ ایسا غلط بھی نہیں بول سکتے، اللہ معاف کرے ہمیں، تو مثال کے طور پہ بتا رہے ہو، ایسا کوئی خیال بھی آیا ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تخفیف کر کے کیا کیا، ایک مسلمان 2 کافر سے لڑنے کے لیے کافی ہو جانا، 2 سے مقابلہ کرے گا. یعنی کتنی آسانی ہم انسانوں کے لیے ہو گئی. دیکھیں 10 کدھر 2 کدھر. یہ چوتھا منسوخ اور نسخ کا معاملہ تھا. اور 5واں سورہ محمد کی آیت 4 منسوخ ہو گئی، جس میں قیدیوں کو کیا تھا حکم، جو جنگ میں قید ہو کے آتے تھے ان کو فدیہ لے کے رہا کر دینا، یا پھر احسان کر کے رہا کر دینا تھا، آزاد کر دینا تھا. لیکن غلام اور لونڈی نہیں بنا سکتے تھے. اب یہ آیت کو منسوخ کرنے کے لیے کون سی آیت آئی؟ سورہ احزاب کی آیت 50 آئی. اس میں تینوں چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دے دی. یعنی آپ غلام لونڈی بھی بنا سکتے قیدیوں کو، یا پھر فدیہ دے کر بھی چھڑا سکتے، کوئی اگر فدیہ دیا تو فدیہ لے کر اس کو آزاد کر دے سکتے، یا پھر احسان کر کے ان کو بھی آزاد کر دے سکتے. تو یہ 5 ہے جو قرآن میں آیتیں نسخ اور منسوخ ہوئی سو ہے. قرآن میں ناسخ اور منسوخ آیتیں 5 جگہوں پر جو موجود ہے نا، سب سے پہلے والی آیتوں سے بہتر حکم لا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بھی آیت کو منسوخ کیا ہے. اب دیکھ رہے ہیں یہاں پر عدت کی مدت 1 سال تھی. اگر کوئی جوان لڑکی ہے، بیوہ ہو گئی، اگر اس کو دوسری طرف نکاح کا موقع آ رہا تو وہ نکاح 1 سال کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا اس کو. اب 4 مہینے 10 دن تک اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے، دوسری جگہ نکاح کر سکتی. تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ہم انسانوں کا ہی ہے نا. اب اسی طریقے سے دیکھیں آگے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہ سب چیزیں تھی، اسی شریعت میں ان لوگوں نے تحریف کر دی تھی. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں اس کو پھر ریوائز ایڈیشن کی طور پہ قرآن مجید نازل ہوئی. تو ان کی شریعت میں جیسے جو چیزیں تھیں اسی طرح ہماری قرآن میں بھی منسوخ ہوئی کچھ آیتیں. جس آیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھلا دینا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیے، تو وہ اٹھا لی گئی. تو اب اس کی نہ تلاوت باقی ہے، نہ تو اس کا حکم باقی ہے. ایسا کرنے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مصلحت چھپی ہوئی تھی وہ ہم تبھی سمجھ سکتے جب ہمارے کو قرآن اور حدیث کا علم ہو. یعنی اسلام میں پہلے بندوں کو ذہنی طور پر تیار کیا گیا، پھر اس کے بعد اس کو منع کیا گیا، اس کو منسوخ کیا گیا. کیونکہ انسان جس چیز کا عادی ہو جاتا نا تو فوراً کسی چیز کو نہیں چھوڑ سکتا. مثال کے طور پہ کوئی شراب پینے والا ہے، سگریٹ پینے والا ہے، تمباکو کھانے والا ہے، کچھ بھی ہے، اس کو آپ فوری بند کر دو تو مر جاتا، نہیں سنتا اور بدزن ہو جاتا، وہ ضد پہ آ جاتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گریجولی ان لوگوں کو جیسا چھڑایا تھا نا، پہلے جیسا نماز جب پڑھنے جا رہے ہیں تو نشے کی حالت میں، شراب کا جب نشہ کرے ہوئے ہوتے تو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا تھا. لیکن آہستہ آہستہ ان لوگوں کو ٹریننگ دے کر ایک وقت ایسا آیا کہ شراب کو حرام کر دیا، پھر ان لوگوں نے چھوڑ دی. اور پھر ایک آدم علیہ السلام کے بچوں میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، کیونکہ جب دنیا ہی نہیں تھی تو نکاح کرے تو کس سے کرتا، دنیا کس سے بڑھتی، تو بہن بھائی سے اپوزٹ. یعنی ایک بار میں ایک بھائی ایک بہن پیدا ہوتا تھا، پھر دوسرے میں جو بھائی بہن پیدا ہوتا تھا تو پہلے والے کے بھائی کے ساتھ دوسرے بار کی جو بہن ہوتی اس سے اپوزٹ والا نکاح ہوتا تھا. تو یہ ہم آگے پڑھیں گے. پھر پہلا قتل بھی کس وجہ سے ہوا تھا، یہ شادی کی وجہ سے ہی ہوا تھا. تو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے وہ. تو بہن بھائی کا قتل کا بہن بھائی کے نکاح کا بھی حکم اب منسوخ ہو گیا نا، شراب کا ہو گیا. اور پھر قبلہ تحویل کرنا، یعنی پہلا قبلہ مسلمانوں کا خانہ کعبہ ہی تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمانا چاہتا تھا، کچھ دنوں کے لیے عارضی طور پہ بیت المقدس قبلہ ہوا. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ پہلے خانہ کعبہ تھا، تو ان کی التجائی نظریں آسمان کی طرف اٹھتی تھی کہ کاش اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو ہم قبلہ خانہ کعبہ کو کر لیں. کیونکہ اس پر بھی یہودی تانے دیا کرتے تھے، اگر یہ کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام کے طرح ہم بھی حنیف ہے، یعنی ہم بھی مومن ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں تو ان کا قبلہ تو یہ تھا، پھر یہ بیت المقدس کی طرف کیوں رخ کر کے نماز پڑھتے؟ یہ یہود اور مشرکین تانے دیا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم التجائی نظروں سے آسمان کی طرف دیکھتے تھے، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہ ہو وہ قبلہ نہیں بدل سکتے تھے.
تو اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب قبلہ تحویل ہونے کا حکم دیا، مسجد قبلتین میں یہ حکم آیا تھا، عصر کی نماز پڑھنے تھے، 2 رکعت نماز ہو چکی تھی، جب یہ حکم آتے پھر اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز مکمل کی تھی. تو یہ بھی ان کے لیے ایک اعتراض کا سبب بنا تھا. لیکن اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کون ہے، منافق کون ہے، مشرک کون ہے، یہ لوگوں پر ظاہر کرنے، اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا لیکن لوگوں کو، عام لوگوں کو ظاہر کرنے کے لیے یہ آزمائشوں کے طور پہ یہ سب چیزیں کی گئی تھی. جیسا زنا کی سزا، وراثت کی تقسیم کا حکم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم، یہ سب منسوخ ہو گئی. وراثت کی تقسیم کا طریقہ بتایا گیا، زنا کی سزا فکس کر دی گئی، پہلے قید کرنے کی تھی نا، وہ نہیں ہے ابھی. یعنی آپ عام زبان میں اگر دیکھا جائیں گے تو ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے، حالات کے مطابق وہاں پر بھی اس کی ترمیم کی جاتی. تو اگر کوئی اس میں اعتراض کرا تو کیا وہاں کی حکومت آپ کی بات سنیں گے؟ نہ. کوئی اعتراض کرا تو کوئی حکومت اس کو چینج کرتی نہیں کرتی نا. تو پھر ساری چیزیں اللہ کے حکموں پہ کیوں ہمارے کو بری لگتی؟ اللہ کا جو حکم ہے وہیں پر ہم نقطہ چینی کرنے کیوں نکل جاتے؟ یہ سب شیطان کی وجہ سے ہے. جب ہمارے پاس انشاءاللہ قرآن کا پورا علم آ جائے گا، پورا علم تو مکمل ہو ہی نہیں سکتا لیکن ایک بار بھی ہم کم سے کم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو تب یہ سارے شک و شبہات ہمارے دلوں سے نکل جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. مومن کی 3 نشانیاں ہوتی ہے. نمبر 1، انسان کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول سے. دوسرا، اگر ہم کسی سے دوستی کر رہے ہیں تو بھی اللہ کی خاطر کرنا ہے، اگر کسی سے ہم دشمنی کر رہے ہیں تو بھی اللہ کی خاطر کرنا ہے. تیسرا، کفر کی طرف لوٹنا اس کو اتنا مشکل لگے جیسے آگ میں زندہ خود کو جلا لینا. تو یہ نشانیاں ہم میں آنی چاہیے. آیت 107 کے تفسیر دیکھیں. کیا تجھے معلوم نہیں کہ زمین و آسمان کا مالک صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے؟ تو جس وقت جو حکم اس کی مصلحت اور حکمت کے مطابق ہو اسے نافذ کر دے. اسے یعنی کوئی روک سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ جسے چاہے منسوخ کر دے، جسے چاہے وہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کر سکتا ہے. اللہ کی رحمت بھی کسی کو دے سکتا ہے، اللہ کی نعمت بھی کسی کو دے سکتا ہے، اللہ کی رحمت اور نعمت کسی سے چھین بھی سکتا. وہ ہر چیز پر قادر ہے. جب زمین و آسمان کا خالق، رازق، مالک، ربی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے تو پھر اس کا ہی حکم سب دنیا پہ چلیں گا نا. ہمیں ہر حال میں سمیانہ واتانہ کہنا ہے. مومن وہی ہے جو سمیانہ واتانہ کہتا. ہر حکم پر عمل کرنا ضروری ہے. اگر کفر کریں گے تو ہم اللہ سے بچ کر کہاں جا سکتے؟ اور کون ہمارا اللہ کے مقابلے میں مدد کر سکتا؟ اللہ ہی ہمارا سچا دوست ہے، ہمارا ولی ہے، مددگار ہے. تو اس کو چھوڑ کے ہم دوسروں کو اگر دوست بنا بھی لیں تو دنیا کی تھوڑی بہت مدد کریں گے لیکن آخرت میں کون مدد کریں گا؟ وہاں تو نفسا نفسی کا معاملہ رہے گا. ہمیں چاہیے کہ دنیا ناراض ہو جائے پرواہ نہ کرے لیکن اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی چاہیے. آیت 108 دیکھیں. کیا تم اپنے رسول سے یہی سوال پوچھتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا تھا؟ ایمان کو کفر سے بدلنے والے سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں. اس آیت میں مسلمانوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کثرت سے سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کریں. غیر ضروری سوالات کرنے سے انسان صراط المستقیم یعنی سیدھے راستے سے بھٹک کر کفر کی طرف جا سکتا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، فضول باتیں کرنے سے بچیں. جب بات کرنے کے لیے کوئی موضوع نہیں ہے تو انسان بات پہ بات کرنے کا جب عادی ہو جاتا تو اس میں غیر غلط باتیں بھی شامل ہو جاتی. دوسرا، کثرت سے سوال کرنے سے منع کیا گیا. تیسرا، فضول خرچی کرنے سے منع کیا گیا یعنی مال کا ضائع کرنا ہر حال میں جائز نہیں ہے. یہود کثرت سے سوال اعتراض کی نیت سے کرتے تھے. جس وقت قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، اگر کوئی مومن اگر سوال کرے، اگر اس تعلق سے حکم آ جائے تو اس پر ہمیں عمل کرنا مشکل ہو جاتا تھا. جس طریقے سے نافرمانی کر کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہود و نصارہ گمراہ ہو گئے تھے، کئی اور ہلاک بھی کیے گئے تھے نا. تو ویسا ہمارے ساتھ نہ ہو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے. جیسے کہ ایک صحابی نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج کرنا ہر سال ہمارے پر فرض ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہیں دیے تھے. اگر اس وقت کوئی وحی آ جاتی یا آپ ہاں کہہ دیتے تو آج ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا تھا. ایک بار حج کرنے کے لیے اب لاکھوں روپے چاہیے، تب ہر سال کرنا کسی کے لیے ممکن ہوتا؟ تو ایسے کوئی بیجا سوالات نہ کریں جس سے ہمارے دین میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. وہ جان کر بھی آپ کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ تو جو چیزیں کلیئرلی اس میں بتائی گئی، جو احکامات دیے گئے اس پر عمل کر لیں وہی کافی ہے ہمارے لیے. آیت 109 دیکھیں.
اہل کتاب کے اکثر لوگ حق واضح ہو جانے کے بعد صرف اور صرف حسد بخش کی بنا پر امت مسلمہ کو بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے تھے. یہ حق واضح ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر یہ جو چیزیں ہیں نا، حق بولے تو قرآن، اور ان کی بھی کتابوں میں، تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھی. آخری رسول آئیں گے تو لوگ انتظار میں بھی تھے، ان کی مدد کرنے کا وعدہ بھی کیے تھے. لیکن صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسحاق کے بجائے بنی اسماعیل میں آنے سے ان لوگوں کو حسد ہو گیا، کیونکہ نبوت ان کی قوم سے، بنی اسرائیل سے نکل کر کسی اور قوم میں منتقل ہو گئی، عرب میں منتقل ہو گئی. یہ ان کو برداشت نہیں ہوا. تو اب یہاں پر دیکھیں، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، مومنوں کو کیا طریقہ دکھا رہے ہیں. اب یہود نصارہ کے ایسے بیجا سوالات ہے یا حسد بغض کر رہے ہیں، ہمارے کو تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہیں یا ہمارے کو دین سے پھیر دینا چاہ رہے ہیں، تو آپ کیا کرنا ہے، ان کو اگنور کریں اور معاف کر دیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا حکم دے دے اور ان کے اور مومنوں کے بیچ میں فیصلہ کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے نا. تو ہر قوم میں بہت کم لوگ ہی حق پر ہوتے ہیں. آج بھی یہی حرکتیں یہود مشرکین کرتے ہیں، مسلمانوں کو آیتوں میں نقص نکال کے، کیونکہ علم نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارے قرآن کی آیتوں کو سے غلط معنی دے کے ہمارے مسلمانوں کو گمراہ کر کے وہ لوگ مذہب چینج کروا رہے ہیں. اور لا علمی کی وجہ سے ہمارے بھی مسلمان دیہاتی اکثر لوگ گاؤں میں جو رہتے ہیں، جس کے پاس علم نہیں ہے، پیسے کی لالچ میں یہود بھی ہو جا رہے ہیں، نصارہ بھی بن جا رہے ہیں. یعنی حسد کی بیماری سے انسان ہمیشہ خود کو ہلاک کرتا ہے. جب بھی ایسے خیالات دل میں آئے، اس کو عمل میں نہ لائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. جو نعمت اور خیر اللہ انہیں عطا کیا ہے، ہمیں بھی تو عطا کر، یہ ہم دعا کر سکتے ہیں. اور حدیث میں ہے، ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے. یعنی جس کے پاس بھی اولاد ہے، جائیداد ہے، بلڈنگ ہے، کار ہے، اچھے بچے، پڑھے لکھی، ڈگری ہے، ایسا کچھ بھی اگر ہے نا، تو ایسے لوگوں سے ضرور حسد کیا جاتا. اور حسد سے بچنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ طریقہ بتا دیے. کیا ہے وہ طریقہ؟ میں بتا چکی نا، صبح شام کے اذکار ہے، وضو سے رہنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، اور اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نعمتیں دی ہوئی ہے وہ فخر سے لوگوں کو دکھاتے ہوئے نہ پھریں. ہاں، جو ظاہری طور پہ اگر ہو جاری ظاہر، تو اس کو ہم چھپانا بھی نہیں چاہیے. ایسا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پانے کے بعد ہم اپنے آپ کو مسکین، غریبی حالات، پھٹے کپڑے ڈال کے یعنی مسکین جیسی حالت بنا کے بھی رہنا، یہ ناشکری ہے. جو نعمت یعنی اللہ تعالیٰ دی ہے نا، وہ نعمتوں کو اگر ہم شکر ادا کرتے ہوئے، اس کا بغیر دکھاوا کرتے ہوئے اگر استعمال کریں گے، اس میں برکتیں بھی نازل ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اہل کتاب جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، پھر بھی وہ کفر حسد کی بنا پر انکار کرتے تھے، اور قیامت تک مسلمانوں سے حسد کرتے ہی رہیں گے. یہ لوگ، ان کے دلوں کا بخش نہیں جائیں گا. اسی لیے مسلمانوں کو فرمایا گیا کہ تم مسلمانوں کو چھوڑ کر مشرکوں کو اپنا دلی دوست نہ بنائیں. اب ہم کالج میں، جاب میں، اسکولوں میں، پڑوس میں اگر کافر ہے تو ان سے ہم لڑکے نہیں بیٹھ سکتے. ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اخلاق سے بات کریں، لیکن ان کا دلی راز کی جو باتیں ہوتی نا، وہ کبھی بھی شیئر نہ کریں. جب مسلمانوں کے خلاف ٹھہرنے کی بات آتی نا، یہود و نصارہ ان دونوں کی بھی نہیں بنتی آپس میں، وہ دونوں ایک دوسرے کے دشمنی ہے. لیکن جب وقت آتا مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرنے کا، تو یہود نصارہ آپس میں ایک ہو جاتے ہیں، مسلمان کے خلاف سازشیں کرتے. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر ان کو معاف کر دیں، اللہ کے احکامات کو سیکھیں اور اس پر صبر سے کام لیں اور عمل بھی کریں، تاکہ فتنہ اور فساد سے خود کو بچا سکیں. یعنی کیچڑ میں اگر آپ پتھر ماریں، کیچڑ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے ہی کپڑے گندے ہوتے نا. تو اسی لیے خود کو بچنے کا یہاں پر صحیح طریقہ اور آسان طریقہ بتا رہے ہیں. ان کا مقابلہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم کو. ان کا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے. اللہ کافی ہے ان سے انتقام لینے کے لیے. فاعفو واصفحوا، اس کا میننگ یہی ہے، معاف بھی کرو اور ان کو درگزر کرو، اگنور کرو، یعنی اس کو یاد بھی مت رکھو، مٹا دو. واصفحوا کا مطلب مٹا دینا. اگر وہ یاد بھی رہا ہمارے کو، ان کو دل سے اگر معاف بھی کر دیں گے ہم، انہوں ہمارے کو جو تکلیف پہنچائے تھے وہ یاد بھی رہا، تو کیا ہوتا، ہمارا دل اندر سے کڑتے رہتا، جس سے ہمارے نمازوں میں بھی خوشو نہیں آ سکتا، ہماری سکون کی نیند بھی حرام ہو جاتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک آسان طریقہ بتا رہے ہیں، ان کو معاف بھی کر دو، اس کو دل سے مٹا بھی لو، دماغ سے بھی نکال دو وہ چیزیں. کتنا پیارا دن ہے ہمارا. دیکھیں، اگر اس کو اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو ہماری زندگی کتنی آسان ہو جاتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے. اس کی نعمتیں، برکتیں ہمیں قیامت کے دن تک جاری و ساری رکھنا یا رب.
आमीन या अल्लाह या रहमान या रहीम। चलें आयत 110 देखें। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर से नमाज को कायम करो, ये मैं सूरह बकरा की आयत 4 में बता चुकी। कायम करने से क्या मतलब है, नमाज पढ़ने से क्या मतलब है। आप एक बार अगर देखना चाह रहे हैं तो पिछली आयतों में देख लें। और ज़कात देते रहा करो, जो कुछ हम नेकी और भलाई के काम करेंगे उसका अजर आखिरत में जरूर पाएंगे। यानी खामोशी से हम अपने दीन पर अमल करें, दूसरों को भटकाने से ना भड़के। यानी कोई भी आते वसवसे डालते, क्या तुम मुल्ला नहीं बन गई, क्या तुम कुरान की क्लास में अपने आप को इतना टाइम लगा रही, तुम पढ़ी लिखी डिग्री रखते हुए तुम जॉब करके पैसा कमाने के बजाय तुम घर में बैठ गई, चलो कुछ जॉब कर लो तो कुछ पैसा आ जाएगा, तुम्हारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। ऐसी चीजें बहुत सारी होती है दोस्तों में, रिश्तेदारों में। ये देखो डिग्री तो ले ली लेकिन बेकार की। ऐसी बातें अक्सर औरतें करती है ना, तो ये शैतानी बातें हैं। इंसान की शक्ल में जो शयातीन होते हैं ना, ऐसे ही लोग होते हैं। आप पढ़ लिख के जरूर रहें, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर दीन और दुनिया का जरूरी है, लेकिन औरत का बिना जरूरत के घर से बाहर निकलने से मना किया गया है। अगर आपके माशाल्लाह आपके माशाल्लाह ठीक है, आपके वालिद आपके भाई आपका खर्चा उठा सकते, शादी के बाद शौहर उठा सकते, तो आपको बिना किसी जरूरत के बाहर निकल के जॉब करना जरूरत नहीं है, उससे मना है। अगर आपको वाकई में कोई माशी परेशानी है, हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, जॉब चले गई, या खुदा ना करे किसी का तलाक हो गया, किसी के शौहर की वफात हो गई, ऐसी जरूरत की तौर पे औरत पर्दे के अहकामात को रखते हुए, यानी जिस तरीके से शरई अहकामात है, यानी गैर आदमियों से मिलना, उनसे ठट्टेबाजी करना, मजाक करना, शेक हैंड करना, ये सब चीजों से बचते हुए वो अगर बुरखे में रह के, हिजाब में रह के नौकरी करना चाहे मजबूरन, तो उसके लिए जायज भी है। और जब ज़कात अदा करने का वक़्त आता ना, लोग उसमें भी कमी कोताही करते। इतना माल कम पैसा तो बहुत रहता, लेकिन जब उसके हिसाब से 2.5% निकालने पे भी हज़ारों में हो गया, तो लोगों को लगता है कि हमारा इतना माल ज़ाया हो जा रहा है। ये ज़कात जो अदा करते हैं ना, सदक़ात जो देते हैं ना, ये माल ज़ाया नहीं हो रहा, बल्कि आपका अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास डिपॉज़िट हो रहा। अगर आप अपने बच्चों के नाम पे किसी बैंक में फ़िक्स करके कहीं ज़मीन, घर लेके रख दिए, तो कितना बेफ़िक्र हो जाते, चलो बच्चों का फ्यूचर तो सिक्योर हो गया। तो हम भी ज़कात सदक़ा दे के अपना आखिरत में अपनी जिंदगी को सिक्योर कर रहे हैं। आप अल्लाह पे एहसान नहीं कर रहे हैं, जिसको आप ज़कात सदका दे रहे हैं उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो हमारी ज़कात और सदका लेके हम पर एहसान कर रहे हैं। अगर वो ना ले तो आप किसको देते ज़कात, किसको सदका देते, कैसा आप नेकियां कमा सकते थे। तो आप कभी भी ज़कात और सदका किसी को दे रहे हैं तो उनको ताने ना दिया करें, उनको कमतर ना समझे, उनको बार बार ये ना बोले कि हमारे टुकड़ों पे पले हुए हैं, हम ही तो तुम्हारे को खर्चे उठाते। ये करके अपने सदकात ज़कात को जाया ना करें। हाँ, आखिरत में हमारी जितनी अच्छी नियत होंगी उसके मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू तआला अजर को बढ़ा चढ़ा कर देंगे, जो दुनिया के माल और दौलत से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। हमें खुशी से ज़कात अदा करना चाहिए, सदक़ात अदा करना चाहिए। हमारे लिए इस आयत में क्या सबक है, जब कभी हमें कोई मुश्किल पेश आए तो खुशू खुजू के साथ नमाज अदा करें, सदका खैरात करें, क्योंकि सदका खैरात करने से बलाया टलते, हमारे दुआएं पूरी होती और बीमारियां दूर होते। या जो कोई मुश्किल वक्त आता उसमें नमाज और सदकात से हम काम ले सकते। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ अगर हम अपना रिश्ता जोड़ना है तो सबसे ज्यादा रिश्ता किससे जोड़ा जाता, फर्ज नमाजों के बाद नवाफिल से। नवाफिल में सबसे ज्यादा तहज्जुद के वक्त अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से रिश्ता अपना मजबूत कर रहे हैं। और खुद को गरीबों से, रिश्तेदारों से, मिस्किनों से अगर जोड़ना चाह रहे हैं तो किससे जोड़ सकते हैं, जोड़ना चाह रहे हैं आप तो ज़कात सदकात से। क्योंकि जब उनको माशी ज़रूरत रहती है, आप अपने पैसों में से दे के उन पर एहसान नहीं जता रहे, तो उनके दिल में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होता और आपके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हो जाते। तो आपका एक रिश्ता इंसानों के साथ मजबूत बन जाता। और कभी भी हम किसी को सदका ज़कात दे रहे हैं तो उस उनसे कोई रिटर्न एक्सपेक्टेशन ना रखें। यानी उनसे कभी हम घर का काम करवा लेंगे, कभी ज़रूरत पे बुला लेंगे, कभी बीमार है तो उनको हमारी मदद करने के लिए बुला लेंगे। ये उम्मीद, ये रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ अगर आप ज़कात दे रहे हैं, सदका दे रहे हैं, तो ये कबूल नहीं होगा, याद रखिए ये बात। क़यामत के दिन हमारे पास ना माल होगा, ना ही औलाद वहाँ काम आएगी। वहाँ पर काम आने वाली क्या चीज़ें हैं? सदका, खैरात, नेक काम, फर्ज नमाज में पाबंदी, खुशू खुजू के साथ पढ़ना, रोजे रखना, नफिल इबादतें करना, तहज्जुद में उठ के पढ़ना, ये सारी नेकियां उस दिन काम आएंगी। ये हमारे लिए फ्यूचर में डिपॉजिट कर रहे हैं, हम नेकियां डिपॉजिट करके अपनी आखिरत की जिंदगी को सिक्योर कर लें। हम बच्चों का मुस्तकबिल कैसा सिक्योर करते हैं, बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं हम। आखिरत में अपना मुकाम सिक्योर करने के लिए जन्नत में क्या हम अपने लिए कुरान को नहीं सीख सकते?
दिन में आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम अपनी आखिरत संवारने के लिए नहीं लगा सकते? बड़ा बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ा मुझे कि 10 आयतें 15 आयतें अगर मैं दूं तो आप सबको बहुत ज्यादा लग रही है, लेकिन हमारा कोर्स कितना है उसके मुताबिक हमें ये मुकम्मल करना है ना। एक टारगेट है ना हमारा, 6 साल में हमारे को कुरान मुकम्मल करवाना है। तो 5 पारे आप डिवाइड करिए, 5-5 पारे, तो एक एक साल में हमारे को 5 पारे करना है। अब देखते देखते हमारे 2 महीने से ज्यादा गुजर चुके। अभी हमारी कितनी आयतें हुई देखें आप लोग। तो मुझे शर्मिंदा ना करें, क्योंकि मैं जो प्लानिंग से कर रही हूँ ना, अभी तो हमारे हिसाब से करना था 16 to 18 आयतें करना चाहिए था ये टारगेट पूरा करने के लिए, लेकिन शुरू है आप लोगों का, इसी वजह से मैं आयतें बढ़ा नहीं रही हूँ। इंशाल्लाह जब आदत हो जाएंगी तो हम इसको बाद में इसको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। और बहुत सारे वर्ड जैसा कि देखें इन्ना, या युहन्नासु, वा, मा, ला, ये सारी चीजें बार बार रिपीट हो रही। अब ये थोड़ा सा आप 1-2-3 पारे आप कर लें, ये बार बार ये रिपीट होंगे ना अल्फाज, आपके लिए आसान हो जाएंगे। यानी ये आखिरत के लिए कर रहे हैं हम। ये अगर कुरान का इल्म सीख रहे हैं तो किसी क्लास टीचर पे आप एहसान नहीं कर रहे हैं, या हम आपको सिखा के हम आप पे एहसान नहीं कर रहे हैं, या किसी ग्रुप ज्वाइन करके हम किसी को दिखावा नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद क्या है? जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम हमारे लिए नाजिल हुआ, उसमें जो अहकाम दिए गए कुरान और हदीस में, जिंदगी कैसा गुजारना वो तरीका बताया गया, अगर वो हमको मालूम हो जाए सही से तो हम उस पर अमल कर सके, जन्नत हासिल करेंगे। अमल करेंगे तो हमको मालूम होगा तो उस पर अमल करेंगे ना। अगर मालूम ही नहीं है तो फिर हम जो काफिर मुशरिक हमारे अतराफ में जो लोग हैं, मुसलमान लोग भी इल्म नहीं होने की वजह से शिर्क बिदअत के काम कर रहे हैं, हम उनकी पैरवी करते जाएंगे, अंधे अपने बाप दादा की तकलीद करते जाएंगे। तो इससे बचना है तो हमारे को इल्म हासिल करना जरूरी है। जैसे कि आंख वाला और अंधा दोनों बराबर नहीं होते, वैसे ही इल्म वाला और अनपढ़ दोनों बराबर नहीं हो सकते। आप खुद देखें, अगर आपके मोहल्ले में या आपके खानदान में कोई एक ऑफिसर है, तो उसका रहन सहन, उसका यानी बात करने का अंदाज लोगों को कैसा लगता, और एक बिल्कुल अनपढ़ है, कभी स्कूल की शक्ल ही नहीं देखा, अगर कोई गया भी है तो एक 4th 5th या 8th या 10th पढ़ के छोड़ दिया समझो, तो उसमें एक बड़े ऑफिसर में जैसे आईएएस ऑफिसर बन गया या आईपीएस ऑफिसर बन गया, कुछ भी ऐसा बड़े ओहदे पे चले गया, तो पढ़े लिखे में अनपढ़ में आप खुद फर्क कर सकते ना। वैसा ही कुरान का इल्म रखने वाले और दुनियावी डिग्री रखते हुए अगर वो कुरान से के इल्म से ला इल्म है तो फिर वो अनपढ़ जाहिल ही है। तो उसमें कुरान के पढ़े लिखे इंसान में और दुनिया के पढ़े लिखे इंसान में आप फर्क नहीं कर सकते। वो दुनिया की डिग्री तो हासिल कर लिया होगा, लेकिन अल्लाह की नजर में पढ़ा लिखा वही है जो कुरान और हदीस को समझ कर पढ़े और उसके मुताबिक जिंदगी में अमल भी करे। उम्मीद है आपको आज हमारी ये तमाम आयतें समझ में आई। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लिहाजा आज के बाद से अहद कर लें, कुरान के लिए हम वक्त लगाएंगे। जो एक एक लम्हा आप लगा रहे हैं, ये आपकी आखिरत में नेकियों के लिए डिपॉजिट हो रहा, जन्नत के लिए आपका घर पक्का बन रहा। तो आप इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं? अपनी आखिरत की जिंदगी के लिए। तो आप अपना थोड़ा सा अगर घर का काम कम नहीं कर सकते, 4-4 डिशें बनाने के बजाय 2 पे काम चला लें, 3-3 टाइम पकाने के बजाय 2 टाइम बना लें। अब आप ये करके तो देखें, आपके वक्त में बरकत होंगी। और रात में अगर आपकी नींद में से अगर कुछ आधा घंटा निकाल सकते हैं, अगर दिन में बिल्कुल आपको टाइम नहीं मिला, तो रात में अपनी नींद को कुर्बान करें। जो भी कुर्बानी आप देंगे वो जाया नहीं होगी इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका बेहतरीन नेमल बदल जन्नत में देने वाला है। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।